ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے اچھی طرح آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلی تھی اور واپسی پر مجھے رات ہو گئی۔ وہ رات تو میں زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، جب ویران سڑک پر چلتے ہوئے میرے پیچھے 2 لوگ لگ گئے تھے۔ میں بڑی مشکل سے جان اور عزت بچا کر اپنے گھر پہنچی، لیکن پھر جو گھر میں میرے ساتھ ہوا وہ ناقابل فراموش ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ میرے ساتھ وہ سب کر سکتا ہے جو اس نے کیا۔ کاش میں بچپن میں ہی مر گئی ہوتی، نہ جوان ہوتی اور نہ مجھے یہ دن دیکھنے پڑتے۔ میرا نام ماریا ہے اور میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں میں اپنے ماں باپ اور 2 بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں سب سے بڑی تھی اور بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ میرے ابا مزدور تھے۔ وہ روزانہ دہاڑی کا کام دیکھنے کے لیے شہر کی ایک مصروف سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے اور جب کام مل جاتا تو شام کو مزدوری لے کر گھر آ جاتے تھے۔ کبھی کبھی کسی ٹھیکیدار مستری کے ساتھ ابا کا کام ہو جاتا تو بہت اچھا معاوضہ مل جاتا تھا۔ وہ سستا دور تھا اور گھر اپنا تھا، اسی لیے اتنے کم آمدنی میں بھی گزارا ہو رہا تھا۔ اور پھر اماں بھی سلائی کا کام کیا کرتی تھیں۔ اماں کے پاس اچھے کسٹمر تھے کیونکہ اماں کی سلائی بہت اچھی تھی، اسی لیے اماں چند جوڑے سی کر کم آمدنی میں بھی خوش تھیں۔ کیونکہ ہم سب بہن بھائی چھوٹے تھے تو اماں کو گھر اور بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کپڑے سلائی کرنے کا وقت کم ملتا تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، آس پڑوس والے اور رشتہ دار کہتے تھے کہ ماریا بہت خوبصورت ہے، جوان ہو کر اس کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی۔ میری اماں مجھے لوگوں کی نظروں سے بچا بچا کے رکھتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ لوگوں کی نظریں اور نیتیں اچھی نہیں ہوتی، اور اگر ایک مرتبہ نظر لگ جائے تو پھر مشکل سے اترتی ہے۔ اماں مجھے اچھے کپڑے اور ڈھنگ سے بال وغیرہ بھی نہیں بنانے دیتی تھی، کیونکہ میں ذرا سا بھی اہتمام کے ساتھ تیار ہوتی تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی سلطنت کی شہزادی ہوں۔ میرا رنگ بھی اماں پر گیا تھا، جبکہ میرے ابا سانولے رنگ کے تھے۔ جب میں 13 سال کی ہوئی تو میرے نین نقش اور بھی واضح ہو گئے۔ میں اسکول جاتی تو اماں میرے بالوں میں تیل لگا دیتی، کیونکہ میرے بال بھی بہت خوبصورت اور سلکی تھے۔ اماں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کا کیا بنے گا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اماں کو اتنا ڈر کس بات کا لگا رہتا تھا۔ بہرحال وقت گزر رہا تھا۔ میں اسکول میں پڑھتی اور میرے بھائی بھی میرے ساتھ اسی اسکول میں جاتے تھے، لیکن پھر ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے دوبارہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیا۔ اس کی شروعات اس وقت ہوئی جب میرے ابا مزدوری کرتے ہوئے ایک اونچی بلڈنگ سے نیچے گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ وقت نے تو ان کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ آخری مرتبہ اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھ پاتے۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اماں ہر وقت روتی رہتی تھی اور ہم تینوں بہن بھائی بھی اماں کو دیکھ دیکھ کر روتے اور پریشان ہوتے تھے۔ میری اماں کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی اور اسی لیے اب جب وہ بیوہ ہوئی تو جوان کی جوان پڑی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا وہ حیران رہ جاتا کہ وہ 3 بچوں کی ماں ہے۔ اب آگے جانے کے بعد عدت کے دوران اماں نے کپڑے سی کر گھر کو چلایا، لیکن گزارا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ہم تینوں کی اسکول کی فیس اور باقی اخراجات اتنے تھے کہ اماں کی آمدنی سے گھر کا خرچ اور ہم تینوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے۔ اماں نے پہلے سے زیادہ کپڑے سینا شروع کر دیے، لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا، اور جس دن اماں کی عدت پوری ہوئی تو اس دن محلے کی عورتیں اماں سے ملنے آئیں۔ ان میں ایک بزرگ عورت تھی۔ محلے میں سب ان کو بانو خالہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس نے اماں کو سمجھایا اور مشورہ دیا کہ وہ کسی شریف آدمی کے ساتھ دوسرا نکاح کر لے، کیونکہ اماں جوان تھی اور بچے بھی چھوٹے تھے۔ اس لیے خالہ نے کہا کہ تمہارا اکیلے رہنا اور بچوں کو پالنا مشکل ہوگا، بہتر یہی ہے کہ تم دوسرا نکاح کر لو تاکہ زمانے کی نظروں سے بھی بچی رہو، اور تمہارے بچوں کے سر پر باپ کا سایہ ہوگا تو اچھا رہے گا۔ میری اماں نے خالہ کو انکار کر دیا، لیکن خالہ کہنے لگی کہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، جب ارادہ بنے تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کروں گی۔ اس کے بعد وہ سب عورتیں چلی گئیں اور اماں اپنے خیالوں میں کھو گئیں۔ میں اماں کو دیکھ رہی تھی، مجھے لگا کہ شاید وہ بانو خالہ کی باتوں پر غور فکر کر رہی ہیں۔
मैं उस वक्त 13-14 साल की थी, इसीलिए मुझे भी इतनी समझ तो थी कि दूसरी शादी का मतलब क्या है। जाहिर सी बात है, वो जो कोई भी होगा हमारा सौतेला बाप होगा, और बाप या माँ सौतेले हों कभी सगे नहीं बन सकते। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा दूसरी शादी करे। इस बात को तकरीबन 1-1.5 हफ्ता गुजरा था कि एक रात हमारे साथ ऐसा वाकया पेश आया जिसने अम्मा को अंदर तक हिला के रख दिया। हुआ दरअसल ऐसे कि रात के वक्त हम सब कमरे में सो रहे थे। वो सर्दियों की रातें थीं। कमरे का दरवाज़ा अंदर से अम्मा बंद कर लेती थी, लेकिन नींद में अम्मा को ऐसे महसूस हुआ जैसे बाहर सहन में कोई है। अम्मा की आंख खुल गई थी। कमरे में छोटी लाइट ऑन थी, जबकि सहन में बड़ी लाइट जल रही थी। अम्मा उठकर बैठी तो मुझे भी जाग आ गई। मैंने अम्मा से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मेरे दोनों भाई सो रहे थे। मैं और अम्मा एक पलंग पर सोते थे, जबकि मेरे दोनों भाई दूसरे पलंग पर सोया करते थे। अम्मा ने मेरे कान में सरगोशी की कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर में कोई घुस आया है। मैं डर गई तो अम्मा ने मुझे कहा कि डरने की बात नहीं है, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। फिर अम्मा ने खामोशी से उठकर कमरे की लाइट बंद कर दी और खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटा कर बाहर देखा तो अम्मा की जान निकल गई। सहन में 2 लोग थे जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, और वो लोग सामने वाले कमरे का ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे। उस कमरे में सामान रखा हुआ था और अम्मा उस पर ताला लगा के रखती थी। अम्मा ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर शोर करती तो मुमकिन था कि वो लोग हमें कोई नुकसान पहुंचाते। इसलिए अम्मा ने अपने फ़ोन से बानो खाला को फ़ोन किया और बताया कि घर में कोई घुस आया है। बानो खाला ने मोहल्ले के मर्दों को जमा करके शोर मचा दिया। वो दोनों चोर थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए। हमारे घर में मोहल्ले के मर्द और औरतें जमा हो गई थीं। अम्मा बहुत घबराई हुई थी। मैं तो बाकायदा रो रही थी। शोर शराबा सुनकर मेरे दोनों भाई भी उठ गए थे। उनकी उम्रें 7 और 8 साल थीं। उस दिन इस वाक़ये के बाद अम्मा इतना डर गईं कि अम्मा ने दूसरे दिन ही बालों खाला को बुलाकर निकाह के लिए कह दिया। मुझे अम्मा की बात अच्छी नहीं लगी थी, मगर मेरे दिल में भी खौफ था कि अगर उस रात अम्मा बानो खाला को फ़ोन न करती या वो लोग दरवाज़ा तोड़कर हमारे कमरे में आ जाते तो पता नहीं क्या होता। अगर अम्मा निकाह कर लेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे घर की तरफ देख सके। इसीलिए मैं खामोश हो गई, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि यही हमारे हक़ में बेहतर है। इस तरह बानो खाला ने अम्मा के लिए 3-4 रिश्ते बताए। उनमें से 2 तो ऐसे थे जिनके पहले से 2-2, 3-3 बच्चे थे। इसलिए अम्मा ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अम्मा चाहती थी कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसके पहले से बच्चे ना हों और वो मेरे बच्चों को दिल से कबूल करे। फिर खाला के बताए हुए एक रिश्ते के बारे में अम्मा ने सोचना शुरू किया। उस आदमी का नाम इकबाल था। वो इसी शहर में लेकिन किसी दूसरे इलाके में रहने वाला था। उसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा थी, यानी वो अम्मा से काफ़ी बड़ा था। उसकी पहली बीवी मर चुकी थी और कोई बच्चा नहीं था। अपना गत्ते का काम करता था और घर भी अपना था। उसने बानो खाला को यकीन दिलाया कि वो मेरी अम्मा से शादी के बाद तीनों बच्चों का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखेगा और उनको बाप की कमी महसूस नहीं होने देगा। अम्मा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और फिर कुछ दिन बाद अम्मा का बिल्कुल सादगी से निकाह इकबाल के साथ हो गया। इकबाल के साथ अम्मा का निकाह होने के बाद हम सब उसी के घर चले गए और अम्मा ने अपना घर किराए पर उठा दिया। अम्मा ये सोच रही थी कि इस घर से जो किराया मिलेगा उससे वो अपने बच्चों का खर्चा वगैरह कर लिया करेंगी। और फिर मैं बड़ी हो रही थी तो अम्मा को मेरी शादी की भी फिक्र थी। मैंने अभी 8वीं का इम्तहान देकर 9वीं क्लास में दाखिला लिया था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, किसी की मोहताज ना रहूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि इकबाल से शादी अम्मा की ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित होगा। जब हम इकबाल के घर आ गए तो कुछ दिन बाद ही हमें पता चला कि वो तो कभी काम करता है और कभी नहीं, और उसका गत्ते का कोई कारोबार भी नहीं है, बल्कि वो किसी और की दुकान पर काम करता है। उसे बहुत कम दिहाड़ी मिलती थी जिसे वो अपने सिगरेट पानी में ज़ाया कर देता था। अम्मा ने यहाँ आकर भी कपड़े सीना शुरू कर दिए और एक करीबी स्कूल में हम तीनों का दाखिला करवा दिया। अम्मा के कपड़ों से जो आमदनी मिलती और घर का जो भी किराया आता वो सब का सब घर के अखराजात और हमारी पढ़ाई के खर्चों में लग जाता था।
نہ ماں کے پاس کسی قسم کی سیونگ ہوتی، نہ وہ کمیٹی ڈال پائی تھی، بلکہ اماں کی زندگی تو پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دن بانو خالہ سے فون پر بات کی اور شکایت لگائی کہ آپ نے دیکھ بھال کر کے میرا نکاح کروایا ہوتا تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی۔ لیکن خالہ بانو نے اماں کو ہی باتیں سنا کے فون بند کر دیا۔ میرے ابا اقبال کو نشے کی بھی لت تھی۔ وہ ہر رات نشہ کر کے گھر آتا تھا اور گھر میں لڑائی جھگڑے کرتا تھا۔ کبھی میرے بھائیوں کو پیٹنے لگ جاتا تو کبھی اماں کے ساتھ لڑتا۔ خود تو وہ کماتا نہیں تھا، جو اماں کماتی تھی وہ اس پر بھی ہاتھ صاف کر لیتا تھا۔ میں اماں سے کہتی تھی اس سے طلاق لے لو، لیکن اماں کہتی تھی میں طلاق لے کے کہاں جاؤں گی، پھر وہی مسائل میرے سامنے ہوں گے جیسا ابھی ہیں۔ ایک مرد کا ساتھ تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ میں خاموش ہو جاتی اور پھر دھیرے دھیرے ہماری زندگی بد سے بدتر ہوتی گئی اور اس طرح 2 سال گزر گئے۔ میں میٹرک مکمل کر چکی تھی۔ میں نے مختلف جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کر دیا، لیکن میری تعلیم اتنی کم تھی کہ مجھے کہیں بھی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی، نہ کسی اسکول میں اور نہ کسی اور جگہ پہ، اور میں کسی گھر میں کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اماں کی طرح گھر بیٹھ کر سلائی کروں، لیکن سلائی کے کپڑوں میں بھی اتنا منافع نہیں تھا جس سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی، اور اب میرے بھائی بھی بڑے ہو رہے تھے اور میں چاہتی تھی کہ میں نہیں پڑھ سکی تو کم سے کم میرے بھائی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں اور میری اماں کے بڑھاپا سنور جائے۔ اسی لیے میں روزانہ صبح سے شام مختلف جگہوں پر کام کے لیے جاتی تھی۔ اتنی خواری کے بعد بھی نہ مجھے ڈھنگ کا کام مل رہا تھا، اوپر سے گندی نیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بہت خواری کے بعد بڑی مشکل سے مجھے ایک میرج بیورو میں کام مل گیا۔ میرج بیورو کی میڈم نے مجھے کہا کہ ان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں مجھے آفس کا خیال رکھنا ہے اور صاف صفائی سے لے کر کلائنٹس کے لیے چائے وغیرہ بنانا، اس کے علاوہ جو بھی کام آفس کی حد میں ہوگا وہ سب مجھے کرنا ہوگا۔ لیکن وہ ان تمام کاموں کے مجھے اچھی تنخواہ دے رہی تھی، اسی لیے میں نے یہ نوکری کرنے کی حامی بھر لی۔ لیکن ٹائم بہت زیادہ تھا۔ مجھے صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک جاب کرنی تھی، اور وہ ہمارے گھر سے اتنا دور تھا کہ مجھے پیدل واپس آتے آتے آرام سے 30 سے 40 منٹ لگ سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میڈم سے بات کروں گی کہ وہ مجھے کوئی رکشہ وغیرہ لگوا دیں تاکہ مجھے آنے جانے میں آسانی ہو۔ یہی سوچ کر میں پہلے دن جاب پر چلی گئی۔ جب رات کو میں واپس آ رہی تھی تو مجھے اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا جب میں پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلی تھی اور میرے پیچھے غنڈے لگ گئے تھے، تو مجھے وہی سب یاد آ رہا تھا۔ لیکن پھر رکشہ سٹینڈ سے رکشہ لے کے میں صحیح سلامت گھر پہنچی تو مجھے بھی سکون آیا اور اماں نے بھی شکر ادا کیا۔ اماں کہنے لگیں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ ساری دنیا کی لڑکیاں گھروں سے باہر نوکریاں کرتی ہیں، مجھے کوئی نہیں کھائے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں ابا کو دیکھ رہی تھی جو مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دراصل وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ میں اس کے آگے بول پڑتی تھی جب بھی وہ میرے بھائیوں کو مارتا یا اماں سے لڑائی کرتا، اور اب تو میں اس کی ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میری جلد از جلد شادی ہو جائے، وہ بھی کسی اس کے جیسے نشئی جواری سے ہی، کیونکہ اسے پیسے مل جاتے ہیں، اور اماں اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ میرا دشمن بنا ہوا تھا۔ اور پھر ایک رات تو ابا نے حد ہی کر دی۔ مجھے جاب کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہوا تھا، اور ایک رات میں گھر واپس آئی تو ابا کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ وہ کسی بات پر اماں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب میں بیچ میں بولی تو ابا نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، چل میں تیرا نکاح طے کر کے آیا ہوں، ابھی تیرا نکاح ہوگا اور میں دیکھتا ہوں مجھے دنیا کی کون سی طاقت روکتی ہے۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے تقریباً گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو شکر ہے اماں بیچ میں آ گئی۔ اماں نے پاس ہی پڑا ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور ابا کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دے ورنہ میں اس سے تیرا سر پھاڑ دوں گی۔ اماں کو اتنے غصے میں دیکھ کر ابا میری کلائی چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا تو اماں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس دن ہم ماں بیٹی بہت ڈر گئے۔ ہمیں لگنے لگا کہ ابا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اسی لیے اماں جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن شادی کے حوالے سے میری بھی ہر لڑکی کی طرح کچھ خواب تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے گھر میں ہو جہاں روپے پیسے کی بھی کمی نہ ہو اور میری قدر بھی کی جائے۔
मैं अपनी अम्मा की तरह सारी ज़िंदगी रोते हुए नहीं गुजारना चाहती थी। हाँ, लेकिन मुझे ये भी अंदाज़ा था कि हमारे जैसे घरों में पैसे वाले रिश्ते नहीं आते। मैरिज ब्यूरो में काम करते करते इतना वक्त तो गुजर गया था कि अब मैं काम को मुकम्मल तौर पर समझ गई थी। वहाँ पर मुख्तलिफ लड़के और लड़कियों की बेहतरीन रिश्ते करवाए जाते थे। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं मैडम से कहूँ कि मेरा भी किसी अच्छी जगह रिश्ता करवा दें, लेकिन मैं ये सोच कर चुप हो जाती थी कि वो जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैरिज ब्यूरो में एक लड़का अपने रिश्ते के लिए हाजिर हुआ। उसने जब अपना तारुफ मैडम को करवाया और अपने बारे में बता रहा था तो मैं वहीं पर लगे हुए पर्दे के पीछे रखे फाइल रैक में फाइल को सेट कर रही थी। मैंने पर्दे की ओर से उसे देखा। वो बहुत खूबसूरत था और उसकी शख्सियत में कोई जादू सा था। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जागी कि काश मेरी शादी इस लड़के से हो जाए। मैं यही सोच रही थी कि अचानक से मैडम को एक कॉल आ गई और मैडम ने मुझे आवाज़ देकर कहा कि हमज़ा साहब को फ़लाँ फ़लाँ लड़की की तस्वीर दिखा देना। मुझे ज़रा इमरजेंसी है, मैं जा रही हूँ। और फिर हमज़ा से थोड़ी सी बात करके और इजाज़त लेकर मैडम ऑफिस से निकल गई। मैं ऑफिस में मर्दों के सामने नकाब किया करती थी, इसीलिए मैंने चुपके से अपने पर्स में से अपनी तस्वीर निकाली और हमज़ा के सामने रख दी। ये तस्वीर मैंने यहाँ पर काम शुरू करने के बाद मैडम के फ़ोटोग्राफ़र से ऑफिस में ही शौक़ से बनवाई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह इस तरह मेरे काम आएगी। हमज़ा ने मेरी तस्वीर उठाई और शुक्रिया कहता हुआ ऑफिस से निकल गया। मेरा दिल बेचैन हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैडम को यह सब पता चलेगा तो मुझे ना सिर्फ नौकरी से निकाल देगी बल्कि हमज़ा से भी मेरी खूब बेइज्जती करवाएंगी। 1 घंटे बाद जब मैडम ऑफिस में आई तो मुझसे हमज़ा के बारे में पूछने लगी। मैंने मैडम से कहा कि जी, मैंने उन्हें सारी तस्वीरें दिखा दी थी और वो सारी तस्वीरें देखकर चले गए थे। मैडम ने कहा चलो ठीक है, मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि अभी मैडम ऑफिस नहीं आई थी तो हमज़ा वहाँ आ गया। मैं घबरा गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये जान गया था कि वो तस्वीर मेरी थी और अब पता नहीं वो मुझसे क्या कहेगा। मैंने उसे बैठने का कहा और बताया कि मैडम अभी ऑफिस नहीं आई। वो कहने लगा कि मैं मैडम से नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर मैं और भी घबरा गई। थोड़ी देर बाद हमज़ा ने अपनी जेब से तस्वीर निकाल के मेरे सामने रखी और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि ये आपकी तस्वीर है। अब आप ये मत पूछिएगा कि मैंने कैसे पहचाना। दरअसल आपकी खूबसूरत आंखें इस तस्वीर से बिल्कुल मैच करती हैं, इसलिए मैं समझ गया कि ये आप ही हैं। और मैं सारी रात इस तस्वीर को देखता रहा और सोचता रहा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लग गई। हमज़ा ने मुस्कुरा के एक कार्ड मेरे सामने मेज़ पर रख दिया और कहने लगा, अगर आपको मैं कबूल हूँ तो आप इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। ये कहकर वो जल्दी से ऑफिस से बाहर चला गया और मैं उसे जाता हुआ देखती रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैंने कार्ड उठा के हमज़ा का नाम और नंबर देखा और अपने पर्स में रख लिया। रात को मैं खाने वगैरह से फारिग हुई तो अपने कमरे में जाकर मैंने हमज़ा को कॉल की। काफ़ी देर हमज़ा से बातें करने के बाद मैं इतना तो जान गई थी कि वो मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन अभी मुझे उस पर यकीन नहीं था। इसलिए मैंने उससे कुछ टाइम मांगा। अब रोज़ाना मेरी और हमज़ा की फ़ोन पर बात होने लगी। फिर कुछ दिन बाद हम दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिले। वहाँ पर भी रूबरू बैठकर बहुत सारी बातें करते रहे। जब मुझे हमज़ा से बात करते हुए 1.5-2 हफ्ते हो गए और मुझे यकीन आने लगा कि वो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका है, तो फिर मैंने हमज़ा को अपने बारे में एक एक बात बता दी कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब से घर से है और मेरी माँ की दूसरी शादी हुई है। बाप नशई है, इसलिए घर का सारा खर्चा मैं और अम्मा मिलकर उठाते हैं। हमज़ा मेरी बातें सुन के और भी मुतासिर हुआ और कहने लगा कि मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं, क्योंकि मैं अमीर ख़ानदान से हूँ, तो बहुत सी लड़कियाँ हैं जो मेरे ही स्टेटस की हैं और मुझसे शादी करने के लिए बेचैन हैं। लेकिन मैं हमेशा से किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो सेल्फ मेड हो, जिसने अपनी मेहनत से अपने लिए कुछ किया हो। इसके साथ साथ मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि मेरी शरीके हयात खूबसूरत भी होनी चाहिए।
اور جب उस दिन मैंने तुम्हें मैरिज ब्यूरो ऑफिस में देखा था तो तुम नकाब में थी, लेकिन जब तुमने वो तस्वीर मेरे सामने रखी तो मैं फ़ौरन समझ गया कि वो तुम ही हो। और अब ये सब कुछ जानकर भी मेरा वही फ़ैसला है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ये सब सुनकर खुश हो गई। मैंने हमज़ा से कहा कि शादी करना चाहते हो तो मेरी अम्मा से रिश्ते की बात कर लो, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा को कोई एतराज़ नहीं होगा। हमज़ा ने अम्मा से मिलने की हामी भर ली और चंद दिन बाद मेरे साथ अम्मा से मिलने भी चला गया। अम्मा हमज़ा से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो हमज़ा की फैमिली के बारे में जानना चाहती थी। हमज़ा ने बताया कि उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है और कोई बहन भाई नहीं। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसके वालिद बीमार हैं, इसीलिए सारा कारोबार वो अकेला ही संभालता है। अम्मा ने पूछा कि हमज़ा के वालिद को मुझसे शादी पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा। हमज़ा ने कहा कि वो अपने वालिद से बात कर चुका है, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए वो खुद अम्मा से मिलने चला आया है। अम्मा ने हमज़ा से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह दी और हमज़ा के सर पर हाथ रखा। उसके बाद वो हमारे घर से चला गया। अम्मा चाहती थी कि अब्बा को पता चले और वो कोई एतराज़ करे, इसीलिए जल्द अज जल्द हमज़ा के साथ मेरी शादी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो जानती थी कि अब्बा ज़रूर कोई ना कोई फसाद करेगा। और अम्मा ये भी नहीं चाहती थी कि अब्बा को हमज़ा के बारे में पता चले कि वो इतना अमीर है, वरना वो हर दूसरे दिन उसके पास पैसे बटोरने के लिए पहुंच जाया करेगा। इस बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि एक दिन अब्बा को दोबारा मेरी शादी का दौरा पड़ गया और वो पता नहीं किसके साथ पैसों की बात करके मेरी शादी की हाँ करके आ गया। घर आकर उसने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू कर दी कि मैं आज उसको लेकर ही जाऊंगा। अम्मा अब्बा से लड़ती रही, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अम्मा ने परेशान होकर हमज़ा को फ़ोन कर दिया और कहा कि जल्दी यहाँ पहुँचो। थोड़ी देर में हमज़ा वहाँ आ गया, क्योंकि वो अपने एक दोस्त से मिलने हमारे घर के करीब ही आया हुआ था। हमज़ा जब घर आया और उसने ये सारा मंजर देखा तो वो घबरा गया, लेकिन फिर आगे बढ़कर उसने अब्बा से कहा कि वो मुझसे शादी करेगा। अब्बा हमज़ा के कपड़ों से ही अंदाज़ा लगा चुका था कि वो अमीर बंदा है, इसीलिए अब्बा खामोश हो गया और कहने लगा कि अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो अभी इसी वक्त निकाह कर और इसे अपने साथ ले जा, वरना मैं तेरा यकीन नहीं करूँगा। मैं और अम्मा हैरान रह गए कि ये अब्बा क्या कह रहा है, लेकिन हमज़ा ने अब्बा की बात मान ली और अपने एक दोस्त को फ़ोन कर दिया। वो मौलवी साहब और चंद और दोस्तों को लेकर हमारे घर पहुंच गए। इस तरह मेरा और हमज़ा का निकाह हो गया और हमज़ा मुझे रुखसत करके अपने घर ले गया। हमज़ा का घर बेहद खूबसूरत और शानदार था। मैं देख देख कर खुश हो रही थी और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। घर में कोई भी नहीं था, और होता भी कैसे। हमज़ा ने बताया ही था कि वो अकेला रहता है, लेकिन मैं उसकी अब्बा को देख रही थी, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आए। हमज़ा ने मुझे कमरे में ले जाकर बिठाया और कहने लगा कि मैं खाने का कह कर आता हूँ। हमज़ा जैसे ही कमरे से बाहर निकला, थोड़ी देर बाद अजीबो गरीब सी आवाज़ें बाहर से आने लगीं। मैं घबरा गई। जब आवाज़ें आना बंद ना हुई तो मैं फ़ौरन उठी और बाहर जाकर देखा तो मेरी रूह लरज़ गई, क्योंकि हमज़ा किसी बुज़ुर्ग से आदमी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बुज़ुर्ग अजीब शोर शराबा करने में मसरूफ़ थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी बात पर ज़िद कर रहे हैं और हमज़ा उनको समझा रहा है। मुझे देखकर हमज़ा ने उनसे कहा कि पापा देखें, आपके हमज़ा की दुल्हन वो सामने खड़ी है। हमज़ा ने मुझे करीब आने का इशारा किया तो मैं उन दोनों के पास चली गई, लेकिन मुझे हमज़ा के पापा से खौफ आ रहा था, क्योंकि उनके बाल बड़े बड़े और बिखरे हुए थे। उनके मुंह से राल टपक रही थी और वो अजीब से अंदाज में शोर कर रहे थे। मुझे देखकर खुशी से और ज़्यादा शोर करने लगे। मैं डरते डरते उनके पास गई तो हमज़ा कहने लगा कि तुम डरो नहीं, ये मेरे पापा हैं। इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने हमज़ा के पापा को सलाम किया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर हमज़ा को गले से लगा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा वही ज़िद शुरू कर दी जो मेरे आने से पहले कर रहे थे। हमज़ा कहने लगा कि पापा नूडल्स खाना चाह रहे हैं और मैं उन्हें समझा रहा था कि इस वक्त वो खाना खा लें ताकि अपनी मेडिसिन ले सकें। और फिर हमज़ा उनको उनके कमरे में ले गया। मैं हैरान सी वहाँ खड़ी थी कि मुलाजमा वहाँ आ गई और मुझे कहने लगी कि बीबी जी आप परेशान ना हों, बड़े साहब तो 2 साल से इसी तरह हैं, लेकिन हमज़ा साहब अपने पापा का बहुत ख्याल रखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे।
इसके बाद मुलाजमा मुझे कमरे में ले गई और कुछ देर बाद हमज़ा वहाँ आ गया। फिर हमज़ा ने मुझे बताया कि जब मम्मा और पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो मम्मा का इंतकाल हो गया और पापा का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उनका इलाज चल रहा है और इसी हफ्ते में उन्हें बैरून मुल्क भेज रहा हूँ ताकि वहाँ से वो बिल्कुल ठीक होकर वापस आएं। हमज़ा की बातें सुनकर मेरी जान में जान आ गई और कुछ दिन में मेरे दिल से वो तमाम वसवसे दूर हो गए जो शादी के वक्त मुझे परेशान कर रहे थे। हमज़ा बहुत अच्छा था। उसने ना सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि मेरी अम्मा और भाइयों का भी ख्याल रखने लगा। उसने मेरे अब्बा को एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दिया था और हमज़ा के पापा भी बैरून मुल्क इलाज के लिए जा चुके थे। मुझे खुशहाल देखकर अम्मा भी एक बार फिर से जी उठी थी। मेरे दोनों भाई शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और अब मैं सुकून में थी कि मेरे भाइयों का मुस्तकबिल महफूज है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।